کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا دارالحکومت ہے جو لاکھوں لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن عملی طور پر خالی رہتا ہے، اور یہ کہ امریکہ نے ایسے میگا پروجیکٹس کے لیے $17 بلین ضائع کیے جو کبھی بھی استعمال نہیں ہوا اور آج تک بالکل بیکار ہے۔ آج ہم دنیا کے سب سے بیکار میگا پروجیکٹس کا جائزہ لیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم دنیا کی 5 سب سے بیکار میگا پروجیکٹس کا جائزہ لیں گے، اور ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ کو کون سے ناکام پروجیکٹس نے لطف اندوز کیا۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو امیزنگ ورلڈ کو سبسکرائب کرنا یقینی بنائیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ امیزنگ ورلڈ کے معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کا پارٹ 1۔ پارٹ 2 کے لیے دیے گئے آئی کے بٹن پر کلک کریں یا ہمارا چینل وزٹ کریں۔ تو شروع کرتے ہیں نمبر 5 سے، ہوائی کا انٹرسٹیٹ H3۔ آئیے ہوائی کی ایک ریاست الوہا اسٹیٹ میں ایک دلکش قدرتی شاہراہ کے ساتھ شروعات کریں۔ معزز خواتین و حضرات، 26 کلومیٹر طویل انٹرسٹیٹ H3 دنیا کے سب سے شاندار مناظر میں ایک سے گزرتا ہے۔ یہ اتنا حیران کن ہے کہ گاڑیاں چلانے والوں کو روکنے اور ٹریفک کے خطرات پیدا کرنے کے بارے میں حقیقی خدشات تھے، تاہم ہائی وے اتنا ہی متنازع ہے جتنا یہ خوبصورت ہے۔ یہ سب سے پہلے 1960 میں دفاعی تحفظات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تجویز کیا گیا تھا، کیونکہ سڑک جنوب کی طرف پرل ہاربور نیول بیس کو مشرقی ساحل میرین کارپس ایئر اسٹیشن سے جوڑے گی۔ اس کی تعمیر کے اعلان کو فوری طور پر ماحولیاتی گروپس میں اور مقامی ہوائی باشندوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جو اس منصوبے کے بڑے پیمانے پر شہرکاری کے بارے میں فکر مند تھے۔ اس وقت کے ماحولیاتی قوانین اور ارد گرد کی وادیوں کی حفاظت کے لیے راستے کی تبدیلی نے منصوبوں کو غیر معینہ مدت تک کے لیے مؤخر کر دیا۔ 26 سال بعد ماحولیاتی رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا جب کانگریس نے اس پروجیکٹ کو ماحولیاتی قوانین سے مستثنا قرار دیا اور بالآخر 1999 میں تعمیر شروع ہونے کا راستہ صاف کیا۔ شاہراہ کو بالآخر 1997 میں کھول دیا گیا۔ اس کی ابتدائی طور پر تجویز کیے جانے کے تقریباً 37 سال بعد انٹرسٹیٹ H3 کو اکثر انجینئرنگ کا معجزہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ناہموار علاقے پر بنایا گیا اور اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا جدید ٹیکنالوجی متعدد ہائی ٹیک سرنگوں کے علاوہ ہائی وے نیچے کی دیواروں میں مقامی ماحول کی حفاظت کے لیے تقریباً خصوصی طور پر ویاڈکٹس کے اوپر سے گزرتی ہے۔ دہائیوں کی تاخیر، راستے میں تبدیلی اور نئی لیکن زیادہ مہنگی ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ اصل تخمینہ شدہ بجٹ سے 5 گنا زیادہ مکمل ہوئی۔ تعمیر کی کل لاگت $1.3 بلین تھی، تقریباً $50 ملین فی کلومیٹر، دنیا کی سب سے زیادہ قیمت۔ بہت زیادہ بجٹ کے باوجود یہ خوبصورت شاہراہ کسی کے لیے مددگار نہیں ہے۔ ناقدین کا خیال ہے کہ یہ ایک کہیں جانے والی سڑک ہے، کیونکہ 60 کی دہائی کے دفاعی تحفظات اب متعلقہ نہیں ہے اور ہائی وے کا شہر ہونولولو تک کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ پھر مقامی ہوائی باشندوں کا معاملہ ہے جو H3 استعمال کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ اسے ملعون سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی تکمیل کے دوران بہت سے مذہبی لحاظ سے اہم ثقافتی مقامات تباہ ہو گئے۔ بین ریاستی H3 ہائی وے بلا شبہ کامیابی ہے جہاں تک میگا پروجیکٹس ہیں، تاہم بعض مقامی گروہوں کے لیے یہ یوز لیس رہتا ہے۔ کم از کم یہ ہماری فہرست میں اگلے پروجیکٹ کی طرح مکمل طور پر ترک نہیں کیا گیا۔ نمبر 4، اسپین کا سیوڈاد ریئل اسٹیٹ سینٹرل ایئرپورٹ۔ اسپین یورپ میں سفری مقامات میں سے ایک ہے اور یہ اہم غور تھا جب سیوڈاد ریئل اسٹیٹ ایئرپورٹ کے خیال کا تصور کیا گیا تھا۔ یہ اسپین میں تعطیلات کے مسافروں اور بین الاقوامی زائرین کے لیے جانے کی منزل ہونے کا اشارہ دیا گیا تھا۔ اس نئے ہوائی اڈے کا ویژن یہ تھا کہ اسے میڈرڈ کے پہلے بھاری بھرکم مرکزی ہوائی اڈے کا متبادل بنایا جائے۔ یہ نئے ہوائی اڈے میں یورپ کے 5 سب سے طویل ترین رن ویز میں سے ایک ہے اور یہ ایک سال میں 20 لاکھ مسافروں کی خدمت کر سکتا ہے۔ میڈرڈ کی 70 ملین مسافروں کی گنجائش کے مقابلے میں یہ نسبتاً کم ہے، تاہم سالانہ 10 ملین تک صلاحیات کو بڑھانے کے لیے توسیع منصوبے پہلے ہی حرکت میں تھے۔ چنانچہ جب یہ بالآخر 2009 میں فعال ہوا تو $1.3 بلین کا خرچ جائز معلوم ہو سکتا تھا، تاہم یہ تمام منصوبے 2012 میں اس وقت رک گئے جب اس منصوبے کے پیچھے والی کمپنی نے دیوالیہ ہونے کا دعویٰ دائر کیا۔ مسائل منصوبے کے مقام سے شروع ہوئے جبکہ اسے سینٹرل ایئرپورٹ کہا جاتا تھا۔ یہ کسی بھی طرح سے مرکزی نہیں تھا کیونکہ میڈرڈ سے 200 کلومیٹر دور واقع تھا۔ اس سے مسائل میں مزید اضافہ ہو گیا
क्योंकि ज्यादातर मुसाफिर दूर दराज मुकाम तक पहुंचने के लिए घंटों सफर करने से गुरेज करते थे और ज्यादातर बड़ी एयरलाइंस ने दारुल हुकूमत से फ्लाइट ऑपरेशन को तरजीह दी। लिहाजा इफ्तिताह से पहले साल के अंदर नई तामीराती शुदा हवाई अड्डे को एक छोटी वक्त की एयरलाइन तक महदूद कर दिया गया। मुसाफिरों को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए कोई अहम एयरलाइंस ना होने के बायस हवाई अड्डे ने 2012 तक $350 मिलियन का कर्जा जमा कर लिया। हैरत की बात नहीं, ये रिसीवरशिप में चला गया और इसे 2013 में नीलामी के लिए पेश किया गया। हवाई अड्डे को हॉट ब्रिटिश टीवी शो के जरिए लावारिस मुकाम टाइप गियर के तौर पर 2014 में मशहूर किया गया। मुतअद्दिद नीलामियों के बाद जिसमें $12,000 की इश्तियाल अंगेज पेशकश भी शामिल थी, बिलाखिर 2019 में नए मालकान को हवाई अड्डा फरोख्त कर दिया गया। चूंकि कोविड-19 वबाई मर्ज के दौरान कारोबार क्रैश हुआ और मुनाफा कम हो गया, सियोडाड रियल एयरपोर्ट को लाइफलाइन मिल गई। मुसाफिरों के वापस आने की बहुत कम उम्मीद के साथ नए मालिकान ने हवाई अड्डे को इस खुश्क आबो हवा, तवील रनवे और कशादा होने की पेश नजर जमीनी तैयारों के घर के तौर पर दोबारा इजाद किया। अगस्त 2020 तक हवाई अड्डे पर 65 हवाई जहाज खड़े थे, जिनमें से 300 से ज्यादा तैयारों के लिए स्टोरेज की सहूलत फराहम करने के लिए तोसी जारी की। स्टोरेज के इस नए अंदाज हवाई अड्डे को एक इंतहाई जरूरी कारोबार मौका फराहम किया। ताहम तमाम जखीरा शुदा तैयारे बिलाखिर खत्म हो जाएंगे। एक बार जब वबाई बीमारी खत्म हो जाएगी और मामूल की परवाजों की वापसी अभी तक मुमकिन नहीं, ये $1 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के मुसाफिरों के लिए मौसर तौर पर बेकार है। नंबर 3, नेपिडा म्यांमार एक और मेगा प्रोजेक्ट है जिसने टॉप गियर तक पहुंचाया। ताहम ये सिर्फ दूर दराज हवाई अड्डा नहीं है, यह म्यांमार का दारुल हुकूमत है। एक नया दारुल हुकूमत शुरू से बनाया गया है। म्यांमार की साबिक फौजी क़यादत ने 2002 में खुफिया तौर पर एक नया दारुल हुकूमत बनाना शुरू किया। किसी मुल्क के दारुल हुकूमत की मुंतकिली के बारे में सुना नहीं है, जैसा कि बहुत से ममालिक ब्राज़ील, मिस्र और पाकिस्तान समेत माजी में ऐसा कर चुके हैं। नवंबर 2005 में म्यांमार के रहनुमा अवाम के सामने अपने फैसले का ऐलान किया, लेकिन नए दारुल हुकूमत का नाम खुफिया रखा। 4 माह बाद इसने आखिर नाम जाहिर कर दिया, नेपिडा, जिसका मतलब बादशाह की रहायशगाह। दारुल हुकूमत की इस अचानक तब्दीली की वजूहात वाज़ेह नहीं थी। कुछ ने क्यास का फौजी रहनुमाओं को समंदर से हमले का खदशा था, जबकि दूसरों का ख्याल था नजूमियों के मशवरे पर मुंतकिल किया गया था। ताहम इसका ज्यादातर ताल्लुक साबिक दारुल हुकूमत यंगोन से था। यंगोन में 70 लाख अफराद रहते थे। कहा जाता है कि ये शहर अपनी बुनियादी ढांचे की हद तक पहुंच चुका है और इसकी आबादी 2050 तक दुगनी हो जाएगी। नंबर 2 पर बात करते हैं फॉरेस्ट सिटी इन मलेशिया। हमने बज़ाहिर माजी के शहर की बात की। हमारी फहरिस्त में अगला एक सबज मुस्तकबिल का स्मार्ट शहर है जो 4 मसनूई जजीरों पर दोबारा हासिल की गई जमीन से उठेगा और एक मसनूई जंगलाती माहौली निज़ाम के गिर्द तामीर किया जाएगा। फॉरेस्ट सिटी का महल वकू इन सरमायाकारों के लिए पुरकशिश शर्त बनाता है जो सिंगापुर की आज़ाद शहर रियासत से इसकी कुर्बत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सिंगापुर के पास दुनिया की दूसरी मसरूफ तरीन बंदरगाह और तरक्की पजीर मईशत है। डेवलपर्स पहले ही दूसरे लिंक ब्रिज के जरिए फॉरेस्ट सिटी को सिंगापुर से जोड़ चुके हैं, जिससे शहर का फासला सिर्फ 20 मिनट तक कम हो गया है। फॉरेस्ट सिटी की अपनी कस्टम सहूलत भी होगी, जिससे रहायशियों को आज़ादाना तौर पर सिंगापुर और वापस जाने का मौका मिलेगा। डिज़ाइन की तशहीर बहुत सी ग्रीन इनोवेशन को शामिल करने के लिए की जाती है। फॉरेस्ट सिटी में सब्ज छतों और अमूदी बागात यानी वर्टिकल गार्डन्स वाली इमारत होंगी जो जंगल का तजर्बा फराहम करेगी। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक और पार्किंग की जगहों के लिए निजी पर्द के साथ एक से ज्यादा लेयर्स डिजाइन होंगी, जबकि ऊपर की सतह में पार्क्स, खेलों की सहूलियात, जबकि ऊपर की लेयर में पार्क्स, खेलों की सहूलत और ट्रांसपोर्ट के मरकज होंगे। ये शहर खुसूसी तौर पर काबिल तजदीद तवानाई से चलाया जाएगा और इसे 2035 तक $100 बिलियन में मुकम्मल किया जाएगा। 4 मुजव्जा जजीरों में से एक तकमील के करीब है, जिसमें 50 अपार्टमेंट की इमारतें, गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और साहिल यानी बीच भी शामिल हैं। ताहम इस इंतहाई महत्वाकांक्षी मंसूबे के लिए ये सब हमवार जहाज रानी नहीं है। बहुत से माशी और सियासी रुकावटें पहले ही इसकी तरक्की में रुकावट हैं। इस मंसूबे को बुनियादी तौर पर चीन के जरिए माली आनत फराहम की जा रही है और चीनी बाशिंदों को इसकी तामीर के इब्तदाई चंद सालों में अमली तौर पर शहर का मुफ्त पास मिला था। नतीजातन अमीर चीनी सरमायाकार जो अपने ही मुल्क में अपार्टमेंट्स की बढ़ती हुई कीमतें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, फॉरेस्ट सिटी पहुंच गए। 2019 तक जायदाद के 80% मालकान चीनी थे।
यहाँ तक कि सड़क के निशानात मैंड्रान में थे और इलाके में खुलने वाले चंद स्कूल मैंड्रान कोर्सेज पेश करते थे। मुकामी मलेशियन इन अपार्टमेंट्स को खरीदने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते क्योंकि जायदाद की कीमतें सिर्फ चीनी मार्केटों को जहन में रखकर मुकर्रर की गई हैं। चीनी सरमायाकारों की इस आमद ने अवामी शोर मचाया। इस मंसूबे के मुखालफिन ने इसे इस्तेमार की एक नई शक्ल करार दिया। चनाचे क़यादत की तब्दीली के बाद वापस आने वाले वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद ने गैर मुल्कियों के जंगलात शहर में जायदाद रखने पर पाबंदी लगा दी। बहुत से गैर मुल्की शहरी छोड़ने लगे और नए सरमायाकारों की हौसला शिकनी हुई। अगला बड़ा धचका वबाई मर्ज यानी कोविड-19 का था और दुनिया भर में सफरी बुलंदियों की सूरत में आया। मलेशिया के मोमेंट कंट्रोल ऑर्डर का मतलब ये था कि कोई भी दुनिया का सरमायाकार इसमें नहीं आ सकता है। बहुत से मौजूदा सरमायाकारों ने गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से इस मंसूबे से आउटपुट किया, लिहाजा 2020 के आगाज तक रहायशी तरक्याती में 500 से कम लोग रह गए थे। इस बात पर गौर करते हुए कि फॉरेस्ट सिटी 7 लाख लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इस वक्त ये प्रोजेक्ट बहाव में है। कुछ फरोख्त करने वाले लोगों का दावा है कोरोना की वबा के आगाज के बाद से फॉरेस्ट सिटी में 10 से कम घर फरोख्त किए गए हैं। कंट्री गार्डन ने गुज़िश्ता एक साल में अपने 1000 से ज्यादा मलेशिया के कारकुनों को नौकरियों से फारग कर दिया, जो इस मंसूबे की किस्मत से महाकावी मंदी का इशारा है। फॉरेस्ट सिटी शायद बहुत से ज्यादा महत्वाकांक्षी था, शुरू करने के लिए हकीकी मानों में हासिल करने के लिए बहुत मुस्तकबिल था और सियासी तौर पर बहुत ज्यादा चैलेंज था कि किसी वक्त जल्द कामयाबी हासिल कर ली जाए। ये समझना महफूज है कि अरबों की सरमायाकारी के बावजूद फॉरेस्ट सिटी फिलहाल एक बेकार मेगा प्रोजेक्ट है। नंबर 1 पर बात करते हैं यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रिस्पोजिटरी। हम इस फहरिस्त को एक हसास आलमी मसले के पेश नज़र एक मंसूबाबंद प्रोजेक्ट के साथ ख़त्म करेंगे। जोहरी फजला के बारे में इतनी बात नहीं की जाती जितना कि दीगर माहौलियाती मसाइल हैं। ताहम अगर सही तरीके से ज़ख़ीरा नहीं किया जाता तो हो सकता है तहजीब की आमद के बाद से अब तक किसी भी चीज़ से ज़्यादा मोहलक हो। अब तक जोहरी फजला यानी न्यूक्लियर वेस्ट इन पावर प्लांट्स के करीब ज़मीन के ऊपर ज़ख़ीरा किया जाता है। ताहम साइंसी बरादरी इस बात पर मुत्तफिक है कि इस खतरनाक फजले को ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरा करना सबसे महफूज मुश्किल ठिकाने का हल है। 1980 की दहाई में अमरीकी हकाम ने फजला के इस बढ़ते हुए मसले का मुस्तकबिल का हल तलाश करने की कोशिश की। 1987 में नेवाडा में यूका माउंटेन को बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर शनाख्त किया गया। यह अमरीका के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जोहरी टेस्टिंग साइट के करीब था और आबादी के मरकज से दूर था। मंसूबा यह था कि मुल्क भर में फजला को यूका माउंटेन के नीचे तकरीबन 300 मीटर के फासले पर एक टनल कम्प्लेक्स में जमा किया जाए। अलग थलग जगह के अलावा यूका माउंटेन आतिशफशान राख से बना है जो लाखों साल पहले बनी थी। यह यूका पहाड़ को किसी भी ताबकार फजले को बगैर किसी टूट फूट के जज़ब करने की इजाज़त देता है। यूका पहाड़ कागज़ के ज़ख़ीरा के लिए एक बेहतरीन मुकाम की तरह लगता था, लेकिन न्यूटन्स के पास इसमें से कोई भी नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 34 रियासतों में 100 से ज़्यादा फाल और बंद जोहरी रिएक्टर साइट है, लेकिन इनमें से कोई भी नेवाडा में नहीं है। चनाचे कांग्रेस के नुमाइंदों और आम लोगों ने पूरे मुल्क में वाहिद एटमी डंपिंग साइट होने के ख्याल की भरपूर मुखालफत की। यूका पहाड़ के सरकारी हाइड्रोकोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सर्वे पर सवालिया निशान उठाए गए थे। मुखालफिन का ख्याल था कि यह जगह ज़ख़ीरा करने के लिए नामुनासिब है क्योंकि इससे करीबी पानी का ज़रिया अमरगोसावा वादी में बहता है और इसे मुकामी अमरीकी इस्तेमाल करते हैं जो वहाँ सदियों से मकीम है। मुखालफत के बावजूद इस मंसूबे को 2002 में मंजूरी दे दी गई और महकमा तवानाई ने दोबारा तामीर शुरू कर दी। ताहम न्यूडा की मुखालफत मजबूत होती गई। उन्होंने दावा किया कि नकल व हमल के दौरान मामूल की नुमाइश न्यूडा के रहायशियों को बदनाम करेगी और रियासत में सियाहत को मुतासर करेगी। ओपोजिशन के लिए न्यूडा को ज़ख़ीरा हासिल करने की वाहिद वजह इसकी कम आबादी और कांग्रेस में ज़्यादा छोटी नुमाइंदगी थी। बराक ओबामा के इक़्तिदार संभालने तक पूरा मंसूबा इंतहाई सियासी हो चुका था और 2010 में ओबामा इंतज़ामिया ने एक मंसूबे को नाकाबिल अमल समझा और इसकी फंडिंग रोक दी। 3 साल बाद एक वफाकी अदालत ने इसे दोबारा शुरू करने का हुक्म दिया, लेकिन इसमें बहुत कम पेशरफ्त हुई। बाइडेन इंतज़ामिया ने वाज़ेह तौर पर कहा कि यूका माउंटेन मुल्क के मंसूबों का हिस्सा नहीं है। ऐसा लगता है कि न्यूडा ने 4 दहाइयों के बाद जंग जीत ली। कई दहाइयों की मंसूबाबंदी, कानूनी मुश्किलात और $17 बिलियन से ज्यादा यूका माउंटेन प्रोजेक्ट में गुजर चुके हैं। फिर भी सब कुछ कहने और करने के बाद इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया और एक बेकार मेगा प्रोजेक्ट है। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है इनमें से कोई भी मुस्तक़बिल में कारआमद साबित हो सकेगा? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
अमेजिंग वर्ल्ड के मौजूद नाज़रीन, पार्ट 1 के लिए दिए गए आई के बटन पर क्लिक करें या हमारा चैनल विजिट करें।